Please welcome my online class Study with Avinash sir. I am going to teach you mathematics of standard 10 for those students who are from English medium stream. Today we are going to learn very important mathematics chapter, pair of linear equations into variables. That is also known as linear equations into variables. This topic is third chapter for CBSE stream and first chapter for state board stream. Before going further, I am requesting to you all students, please download the self-study application from Play Store, Devang Classes. From this application, Devang Classes, you will be able to study mathematics from your home only, study home, study safe. So let's start our first topic, pair of linear equations in two variables. So let's start. An equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variables. Degree of variable means power of variable. That means x raised to 1, x raised to 2, that is called x square, x raised to 3, that is x cube. यहाँ पर हमें वेरिएबल की डिग्री सिर्फ 1 होनी चाहिए. ax plus by plus c is equal to 0 is the general form of a linear equation in two variables where a, b, c are real numbers and a, b are not equal to 0 at the same time. इसमें a, b और c ये रियल नंबर्स है और दिए हुए इक्वेशंस में a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए. इसमें से एक अगर कोई जीरो होता है इट्स फाइन, बट दोनों के दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए. एग्जाम्पल 3x प्लस 2y minus 29 is equal to 0. ax plus by minus c is equal to 0, where a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to minus 29. Simultaneous linear equations. When we think about two linear equations in two variables at the same time they are called simultaneous equations. Simultaneous means एक साथ दिए हुए दो equations. Example 15x plus 17y is equal to 21. This is your equation number 1. यहाँ पर x ये पहला वेरिएबल है और y ये दूसरा वेरिएबल है. Another equation is 17x plus 15y is equal to 11. This is equation number 2. इसमें भी x और y दोनों वेरिएबल दिए हुए हैं. We have given these two equations at the same time. There are two methods of solving these simultaneous equations. अब ऐसे दो इक्वेशंस एक साथ दिए हुए होंगे तो उनको सॉल्व करने के दो मेथड्स हमें यहाँ पे सीखने हैं. फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग मेथड and second one is eliminating method. First I will explain substituting method of substitution by taking some examples. 7x minus 15y is equal to 2, x plus 2y is equal to 3. We pick either of the equations and write one variable in terms of the other. इन दोनों इक्वेशंस को लेकर किसी भी एक इक्वेशंस को आप चूज कर सकते हैं और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं. पहले यहाँ पर x
प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये सिंपल इक्वेशन है दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हुए। तो consider the simplest equation from the given equation, that is second equation, x plus 2y is equal to 3. After transposing 2y towards right side of the equation, we get x is equal to 3 minus 2y plus 2y राइट साइड अगर शिफ्ट किए जा कर देते हैं तो plus 2y becomes minus 2y. Substitute, then we get the value of x is equal to 3 minus 2y. ये 3 minus 2y x की वैल्यू अब बन चुकी है, इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है. Substitute this x is equal to 3 minus 2y in equation 1. We get 7 into x. ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है ब्रैकेट में, 3 minus 2y minus 15y is equal to 2. ये इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट की. 7 into 3, 7 3s are 21, माइनस साइन है, 7 2s are 14y minus 15y is equal to 2. We get x, sorry, 21 minus 29y. ये 29 कहाँ से आया? 14 minus 14 और minus 15 को ऐड किया जाए, then we get minus 29y is equal to 2. Minus 29y is equal to 2. 29 अगर राइट साइड शिफ्ट किए जाए तो ये माइनस बन सकते हैं, माइनस होते हैं. 29 minus 29, 2 minus 29 we get minus 19. Then y is equal to 19 upon 29. दोनों तरफ के ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे या कट हो जाएंगे. 29 राइट साइड अगर शिफ्ट किए जाएंगे, y के साथ लेफ्ट में वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो 19 के साथ डिवाइड हो जाएंगे. देयरफॉर वी गेट 19 upon 29. Substitute this value of y in equation 3, we get x plus 2 into y. This is y. The value of y we have solved, 19 upon 29 is equal to 3. X plus 2 into 19, this is 38 upon 29 is equal to 3. X is equal to 3. 38 upon 29 लेफ्ट साइड में प्लस है, अगर राइट साइड लेकर जाते हैं तो ये माइनस 38 upon 29 हो जाएंगे. यहाँ पर हमें इसका डिनोमिनेटर 3 का जो है वो 1 कंसिडर करेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 into 29 माइनस 38 into 1, इसका डिनोमिनेटर हम 1 कंसिडर करते हैं तो 38 1 जा 38 और 29 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 87 माइनस 38 अपॉन 29. 37 minus 38 we get 49 upon 29. x की वैल्यू हमें मिल गई. The solution of x is equal to 49 upon 29 and y is equal to 19 upon 29. अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं. Now let's see second example. Solve the given simultaneous equation by substitution method. क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ रहता है substitution method. First equation you have given 5x minus 3y is equal to 8. This is your equation number 1. 3x plus y is equal to 2. This is equation number 2. Solution. Let us write the value of y in
terms of x from equation 2, 3x plus y is equal to 2, y is equal to 2 minus 3x. 3x लेफ्ट साइड में प्लस थे, राइट साइड में ट्रांसपोज किए जाए तो -3x बन जाएंगे. देन y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये आपका थर्ड इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आपको मिलेगा. ये y की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में. देयरफॉर 5x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 2 माइनस 3x अभी अभी हमने सॉल्व की हुई है, तो ये ब्रैकेट में डाला हुआ है. 2 माइनस 3x इक्वल टू 8. 5x minus 3 into 6, 3 into 2, that is 6, minus 3 or minus 3, minus minus becomes plus, 3 3s are 9, into x is equal to 8. 5x or 9x, 5 plus 9, 14x minus 6 is equal to 8. 14x is equal to 8. ये जो -6 है राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो +6 बन जाएंगे. 8 plus 6 we get 14. x के साथ इधर लेफ्ट साइड में 14 मल्टीप्लाई रिलेशन में है, राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये 14 के साथ डिवाइड हो जाएंगे. देन 14 upon 14 it becomes 1. x is equal to 1. Substitute this x is equal to 1 in equation 3. Y is equal to 2 minus 3x. This is our equation number 3. Therefore y is equal to 2 minus 3. x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है 1 multiplied by x, then multiplied by 1. y is equal to 2, 3 1s are 3, minus 3, y is equal to minus 1. 2 को 3 से माइनस कर दिया और आंसर को बिगर नंबर की साइन माइनस पुट कर दी. Therefore the solution is x is equal to 1 and y is equal to -1. आप देवांग क्लासेस के सेल्फ स्टडी क्लास में मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं. इस क्लास को आप होम बेस ट्यूशंस जैसे ले सकते हो. स्टडी सेफ, स्टडी होम, बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ स्टडी. और आप सभी को रिक्वेस्ट है, प्ले स्टोर से देवांग क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इसे पर ही यूज करिए. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. 15x plus 17y is equal to 21. 17x plus 15y is equal to 11 by substituting method. बहुत सी बार क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करना है ये आपको दिया हुआ रहता है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है. अब इस एग्जांपल में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें. x का जो कोएफिशिएंट है 15, वो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है. दोनों के कोएफिशिएंट सेम लग रहे, सेम ही है 15 15. और इक्वेशन 1 में y का जो कोएफिशिएंट है 17, वो इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है. मतलब x का कोएफिशिएंट y के साथ अल्टर हुआ है और y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में x का है. इस मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं. 15x plus 17y is equal to 21, equation number 1. 17x plus 15y is equal to 11. This is equation number 2. Let's add these both given equations. First, 15x plus 17y is equal to 1 plus 17x plus 15y is equal to 11. इनको हम ऐड करते हैं तो
15 plus 17x 32x plus 17y plus 15y 32y is equal to 21 plus 11 we get 32. तीनों टर्म्स में हमें 32 कॉमन मिले हुए हैं, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस बाय 32 वी गेट x plus y is equal to 1. ये इक्वेशन नंबर 3 है. Now let's subtract equation 2 from 1. पहली बार हमने इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन किया था. अब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं. लेट्स सी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. 15x plus 17y is equal to 21 minus 17x plus 15y is equal to 11. जब हम सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं तो सभी टर्म्स के सभी नंबर्स के साइंस चेंज हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे 17 प्लस था, इट बिकम्स नाउ माइनस. 15 भी प्लस है, ये अभी माइनस हो चुका है. 11 भी प्लस है, ये भी माइनस हो चुका है. On subtracting we get minus 2x. 15 में से 17 माइनस नहीं होंगे, इसलिए हम माइनस 17 से, 17 बिगर नंबर है, 17 से 15 माइनस करेंगे. सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर एंड पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर टू द आंसर. therefore we get minus 2x. 17 माइनस 15 यहाँ पर प्लस 2x 2y is equal to 21 minus 11 we get 10. तीनों नंबर्स में, तीनों टर्म्स में 2 2 2 और ये राइट साइड में 10, तीनों नंबर्स में इवन नंबर आया हुआ है. डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 वी गेट माइनस x plus y is equal to 5. Now this is your equation number 4. Now add equation 3 and 4. x plus y is equal to 1 plus minus x plus y is equal to 5. यहाँ पर प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, इसलिए y plus y is equal to 2y and 1 plus 5 is equal to 6. 2 and y दोनों मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है. इसको राइट साइड ट्रांसपोज किए जाए तो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इसलिए y is equal to 6 upon 2 that is equal to 3. Now let's subtract equation 2 from 1. Minus 15x plus 17y is equal to 21 minus 17x plus 15y is equal to 11. सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए सबके साइन चेंज हो रहे हैं. Place the value of y in equation 3. x plus y is equal to 1. x plus 3 is equal to 1. y की वैल्यू हम 3 पुट कर दिए हैं. x is equal to 1 minus 3. x is equal to minus 2. 1 minus 3. Subtract smaller number 1 from bigger number 3. That is 2. And bigger number की जो साइन है वो माइनस है, इसलिए minus 2. The solution is x y is equal to minus 2 3. अब हम eliminating method सीखेंगे. Another method is eliminating method, that is removing of one variable among two variables. हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं, उसमें से एक वेरिएबल जो इजी लगे
उसको हमें रिमूव करना है. This method is more convenient than the substitution method. I am explaining this method with some examples. Example, solve the following simultaneous equation by eliminating method. 5x minus 3y is equal to 8. 3x plus y is equal to 2. पहला इक्वेशन हमने ले लिया नंबर के साथ, इक्वेशन नंबर 1. दूसरा इक्वेशन भी हमने लिख लिया, इक्वेशन नंबर 2. जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी आपका वीडियो पॉज करके ये सब राइट करते जाइए ताकि आपको भी ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड इजी हो सके. दोनों इक्वेशंस में हमें उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, तो y का कोएफिशिएंट हम इजीली इक्वल कर सकते हैं. देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 by 3, we get 9x. 3 3 जा 9. इक्वेशन 2 में 3 है x के साथ, उसको 3 से मल्टीप्लाई किए कर दिए तो 9x प्लस 1y है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y हो जाएगा. इज इक्वल टू 2 है इक्वेशन 2 में, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 3 जा 6. दिस इज योर न्यू इक्वेशन 3. Now let us add equation 1 and 3. 5x minus 3y is equal to 8. इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 3 हमें ऐड करना है. इक्वेशन 3 9x प्लस 3y is equal to 6. दोनों को ऐड करने के बाद we get 14x minus 3y और plus 3y gets cancelled is equal to 8 plus 6 14. X is equal to 14 divided by 14, we get 1. Substitute x is equal to 1 in equation 2. 3x plus y is equal to 2. 3 into 1 plus y is equal to 2. x की वैल्यू 1 हमने पुट कर दी. 3 plus y is equal to 2. y is equal to 2 minus 3. y is equal to minus 1. The solution is xy is equal to 1 minus 1. x का कोऑर्डिनेट है 1 और y का कोऑर्डिनेट हमें मिला -1. अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स. 2 पर्सन्स के इनकम का हमें रेशियो दिया हुआ है 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. उनका इनकम भी दिया हुआ है और उनका एक्सपेंडिचर मतलब जितना वो खर्च करते हैं वो भी हमें दिया हुआ है. इफ ईच ऑफ देम manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. दोनों पर्सन्स हर मंथ में 2000 रुपए सेव कर रहे, बचत कर रहे. तो ये कंडीशंस के साथ हमें उनका मंथली इनकम कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है. सॉल्यूशन. दो द फर्स्ट रेशियो ऑफ इनकम्स of 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. Then let us denote the incomes of both the persons by rupees 9x and rupees 7x. पहले पर्सन का इनकम है 9x and दूसरे पर्सन का इनकम है 7x and their expenditures by rupees 4y and 3y. पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर है मंथली खर्चा जो है वो 4y है और दूसरे पर्सन का खर्चा जो है वो 3y है. Then the equation formed in the equation is given by 9x minus 4y is equal to 2000. पहले पर्सन का इनकम जो दी है हमने अज्यूम किया है 9x, उसमें से उसका
मंथली एक्सपेंडिचर जो है 4y वो हमने माइनस कर दिया, तो उसने सेव किया है 2000 रुपीज। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन ऐसा है, दूसरे पर्सन का ये इनकम है 7x जो हमने अज्यूम किया हुआ है, उसमें से उसका एक्सपेंडिचर 3y हमने अज्यूम किया है, वो माइनस कर दिया, तो वो भी 2000 रुपये सेव कर पाता है। इन कंडीशंस के साथ हमने ये दोनों इक्वेशंस तैयार किए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 and equation 2/4 to make the coefficients of y equal। अभी वो -4y एंड -3y, y को वेरिएबल को हमें अगर एलिमिनेट करना है तो दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, ताकि एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो आसानी से वो रिमूव किए जा सकेंगे। इसलिए 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखो 9 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27x माइनस 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12y is equal to 2000 into 3, we get 6000। this is new equation number 3। इसको हमें सेकंड इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28x माइनस 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12y इज इक्वल टू 8000। 2000 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिलता है 8000। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 to eliminate y, because the coefficients of y are the same, so we get 28x minus 12y is equal to 8000 and 27x minus 12y is equal to 6000। यहाँ पर आप देख सकते हो y का कोएफिशिएंट हमें दोनों इक्वेशंस में सेम मिला हुआ है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो जो पॉजिटिव नंबर्स है वो निगेटिव हो जाते हैं और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस वी गेट 28x माइनस 27x, हमें 1x मिलता है, -12 और ये +12 बन चुका है अभी, -12 और +12 कैंसिल हो जाएंगे। 8000 से 6000 हम माइनस करने जाए तो 2000 बचते हैं, therefore x is equal to 2000। put this x is equal to 2000 in equation 1, we get 9x minus 4y is equal to 2000। ये हमारा इक्वेशन 1 है। x की जगह हमें 2000, ये जो नई वैल्यू उसकी मिली है वो पुट करनी है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 2000 minus 4y is equal to 2000। 2000 into 9 that is 18,000 minus 4y is equal to 2000। 4000 is equal to 2000। ये जो 18,000 है लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -18,000 हो जाएंगे। वी गेट -4y is equal to -16,000। दोनों तरफ के माइनस माइनस साइन कैंसिल करेंगे, we get 4y is equal to 16,000। y is equal to 16,000 डिवाइडेड बाय 4। y के साथ ये 4 लेफ्ट में मल्टीप्लाई पोजीशन में है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो 16,000 के साथ वो डिवाइड हो जाएंगे। therefore 16,000 divided by 4 we get y is equal to 4,000। therefore the solution of the equation is x is equal to 2000 and y is equal to 4000। The monthly incomes of the persons are rupees 18,000 and rupees 14,000 respectively। Thank you very much। I hope you understand better from this class। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
और इसी चैप्टर के एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल्स अगर आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है तो प्लीज़ ये हमारा क्लास ज्वाइन करिए।